I was very much bullied, teased, and it was a tough childhood. Agent Vinod करी मैं 2011 में, फिर Heather, and then Bajrangi Bhaijaan. I have seen a lot of setbacks, a lot of failures, a lot of humiliation, a lot of struggle, a lot of rejections, and I think those made me actually. Hello everybody, I'm Tehmeena Rizvi and welcome to the Tehmeena Rizvi podcast. As I've mentioned earlier, I'll be covering people's organic journeys and what made them who they are today. We have here with us an amazing guest who's an army veteran, has acted in different movies like Heather, The Tashkent Files and Bajrangi Bhaijaan with different get-ups which would be very hard to recognize for you. He is an IIM alumni and he has been a Major Muhammad Ali Shah. Welcome to our show, sir. Thank you very much, Tehmeena, and thank you. It's an honor to be at your show. Very, very popular show, I must say. Not so popular yet, but yeah. So we are trying to bring in organic journeys where we try to understand that in the life position you're standing right now, how did you decide? Actually, were you looking forward to something or something happened in your childhood which pushed you towards who you are today? Let me also mention he is the son of Lieutenant Colonel Zamiruddin Shah, Lieutenant General Zamiruddin Shah, and nationalism runs in his blood, and he is also a defense and strategic analyst. So yeah, tell me how it was like to be in an army family. Well, the growing up years were, फौजी brat, अगर father फौज में होते हैं, हर 2-1 साल के बाद तबादला होता रहता है. So the best way was you put him in a boarding school and he will settle there and finishes 12th from there ultimately. बस वही हुआ. तो class 6 के बाद I went to a boarding school and it had military traditions. Lawrence School, Lovedale in Ooty. And I finished my 12th from there. मैंने बचपन से देखा था अपने वालिद साहब को फौज में, मिलिट्री ड्रेस में, और वो बेरे पहन के, और अक्सर मैं उनको सल्यूट किया करता था वो पहन के. Which is impressive. Thanks. Yeah. So it was, yeah, and as an army brat you had facilities to everything. I mean DSOI में membership छुट्टियाँ हैं तो DSOI membership है, swimming pool की, आप you have access to horse riding. Yeah. I mean you name it, हर चीज़ का जो बाहर सिविल में नहीं मिलती हैं. So being an army brat तो बड़ा अच्छा बचपन बीता भाई. और तभी एक बात थी that बचपन में मैं हकलाया करता था और मैं तुतलाया करता था और मैं अटक अटक के बोला करता था और बहुत पतली सी आवाज़ थी मेरी. तो सब लोग मेरा मजाक उड़ाया करते थे, सब लोग हंसते थे भाई. कोई मेरे से दोस्ती नहीं करना चाह रहा था बचपन. You were bullied. Yeah, I was very much bullied, teased, and it was a tough childhood in a way. And I said I felt I want to get rid of this, getting bullied all the time. And I want to get rid of my stuttering problem. तो मेरी speech में वो impediment था. तो मैंने बहुत से tongue twisters सीखे. Like Betty Butter bought a bit of butter, but the butter was bitter, so Betty Butter bought a bit of better butter to make the better butter better. Nice. Peter Piper picked a peck of pickled pepper, Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled pepper, where's the peck of pickled pepper Peter Piper picked? She sells seashells on the seashore, but the seashells on the seashore are not seashells at all. इस तरीके से हजारों टंग ट्विस्टर्स हिंदी में, उर्दू में, अंग्रेजी में बहुत से मैंने सीखे और I practiced over that. So that way, when I went up on stage once, I remember in class 7th, मेरी 13th birthday आने वाली थी और we were very excited कि भाई अब टीनेजर बन जाएंगे. मैं रंगमंच पे गया और वो कविता थी, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. हरिवंश बच्चन राय सबकी बच्चन के नाम से मशहूर हो गई थी सोशल मीडिया में. लेकिन वो कविता दरअसल है सोहनलाल द्विवेदी की. अच्छा. बहुत लोग सोचते हैं कि हरिवंश बच्चन राय साहब की कविता है ये, क्योंकि अमिताभ बच्चन साहब ने ये कविता कौन बनेगा करोड़पति के शो पे कही थी. एंड आई वेंट ऑन स्टेज, मेरी लाइनें भूल गया मैं. बत्ती गुल हो गई भैया बिल्कुल. आई डोंट नो आगे मैं क्या बोलूँगा. सो आई जस्ट सेड धन्यवाद. And I came and sat down. And that was it? Yeah, that's it. और सब मेरी तरफ देख रहे थे घूर घूर के. तो मुझे लगा भाई अब तो मुश्किल टाइम हो गया मेरा. Was it the same time when you were stammering? Or? Yeah. मतलब उस टाइम पे धीरे-धीरे मतलब मैं I started getting a bit better and improve, but still not become all right. I would still stammer.
फिर बाद में बच्चों ने सब बहुत मजाक उड़ाया मेरा, और ए तुम्हारी वजह से हमारा हाउस डूब गया, हमारे पॉइंट्स कम हो गए पूरे हाउस के, तुमने डुबाया हमको, तो ऑब्वियसली यू नॉट फील गुड। मैंने कहा ऐसी गलती अब दोबारा नहीं होने वाली है। उस दिन रात को ज़मीना मैं बहुत रोया। आई वाज इन अ बोर्डिंग स्कूल अवे फ्रॉम फैमिली, यू नो, तो अपनी बारिश हो रही थी बाहर, और बारिश की बूंदों की छत पे आवाज़ आ रही थी, और मैं ठंड बहुत थी तो मैं रज़ाई ओढ़ के मैं सोया था, मगर मैं रो रहा था बहुत अंदर से, सुड़ा के रोया मैं। फिर मैंने कहा कि ऐसी गलती, रात के 12 साढ़े 12 बजे मैंने रज़ाई अपनी फेंकी और मैं उठ के क्लासरूम में गया अपने नाइट सूट पहन के, और वहाँ से मैंने अपनी इंग्लिश रीडर निकाली और विलियम शेक्सपियर की फ्रॉम मर्चेंट ऑफ वेनिस शैलॉक स्पीच है, He hath hindered me and disgraced me 500,000, laughed at my losses, mocked at my gains, scorned my nation, thought at my bargains. And what's the reason? I am a Jew, hath on a Jew eyes, organs, dimensions, senses, affections, passions. Fed with the same food, hurt by the same weapon. If you tickle us, do not laugh. If you prick us, do not bleed. If you harm us, do not revenge. तो इस तरीके से मैंने वो, और फिर जूलियस सीजर की स्पीच थी ना, फेमस स्पीच, मार्क एंथनी स्पीच ऑन सीजर्स डेथ, वेरी 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 फेमस स्पीच. Friends, Romans, countrymen, lend me your ears, I come to bury Caesar, not to praise him. The evil that men do lives after them, the good is oft entered with their bones. So let it be with Caesar, the noble Brutus had told you, Caesar was ambitious. If it were so, it was a grievous fault, and grievously has Caesar answered it. Here, under leave of Brutus and the rest, for Brutus is an honourable man, so are they all honourable men. Command will speak in Caesar's funeral, he was my friend. Faithful and just to me, yet Brutus says he was ambitious and sure. He is an honourable man. I speak not to disprove what Brutus spoke, but here I am to speak what I do know. You all did love him once, not without cause. What cause withhold you then not to mourn for him? Oh, judgment thou art fled to brutish beasts, and men have lost the reason. My heart is in the coffin there with Caesar, and I must pause till I it am comes back to me. surprised. How do you remember all of this? You had surprisingly, you had also mentioned the first person I came across who told me that he has got 101 marks from 100 out of 100 in English. You're the first person literally I've heard from. 101. पहली बात तो it's impossible to even get 100 or 99 because English is such a subject. कहीं ना कहीं quotes में ही, commas में ही, your marks are cut. But how did it happen? 101, it's slightly... 101 नहीं, 1 out of 100. Oh! 101 नहीं, 1 out of 100 फेल हो गया था मैं, वो भी स्टाइल में फेल हुआ भैया, फेल नहीं हुआ, बड़े स्टाइल में फेल हुआ मैं भैया। अगर 20 मार्क आते हैं, 10 मार्क आते हैं, आप फेल हुए, मेरा 1 अंक आया था 100 में से। So it's my bad. I thought you got 101 out of 100. 1 out of 100 यार। And even still, if you got 1 out of 100, this is also one of a kind. A case where a kid got 1 out of 100, because even if you write 2 words, 4 words, 10 words, you'll still get 4 marks. नाम ही लिख के आ जाओ अपना, नाम ही लिख के। You only wrote your name. No. I attempted full 100 marks. And how did it happen? मुझे नहीं मालूम। All of those answers were wrong? No, पता नहीं यार, क्या हुआ। मैंने तो पूरा 100 में से 100 अटेम्प्ट करे मैंने। जब रिजल्ट आई तो फेल 80 के 80। Oh my और मार्क कितना? 1। फिर मैंने री एग्जाम दिया, जाहिर सी बात, बिना पढ़े दिया, और री एग्जाम में इस बार डिस्टिंक्शन आया मेरे को। So अगर मैं, कोई यकीन ही नहीं करता ये कि But now when I understand what you were saying for the literature you read just now, you remember everything. Yeah. What if you were posed with these questions and you write everything, but how come you only got 1 mark? Were you the same in your childhood about reading and writing what you are right now? रीडिंग yes, रीडिंग का मेरे को बचपन से बहुत शौक था, मतलब अभी भी है। और ये चश्मे उसी की बदौलत है, मैं पढ़ता बहुत हूँ मैं, जब मैं गाड़ी में भी अभी आ रहा था तो या तो मैं अभी में एक चैनल का आई वाज रीडिंग एंड आई जस्ट, मेरी एक बेचैनी है, बिना पढ़े ना आई फील वेरी अनकंफर्टेबल। और जब मैं रात को सोता हूँ तो आई फील पढ़ के सोना पड़ता है मेरे को, और सुबह उठता हूँ तो आई रीड। Is it something your family has inculcated? I mean, was your father or mother or everybody in the family of the same temper that they need to read books every day so that they feel good or have information about a lot of things? So was it inculcated through your family? Yes, a large extent it is my family's influence. Everyone in my family is like very literate, educated, very well read. I am not surprised. Let me also mention that Nasiruddin Shah Sahab is his uncle. So we understand from the life of Zamiruddin Sahab, Nasiruddin Sahab, and you
we understand you come from the family of achievers and people who are really keen towards social change, education and everything. Tell me, how was your childhood with Naseer Sahab? Thank you. I will answer that. Before I answer this, I'll tell you, इंसान किस खानदान में पैदा होता है ये ज़रूरी नहीं है, इंसान खुद क्या करता है ये बहुत ज़रूरी है. So legacy is something not to boast about, but to live up to. And our generation particularly is under a lot of pressure because हमारे पिलर्स भाई वालिद साहब डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वाइस चांसलर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी. हाँ, होप्स तो खैर होपलेस हूँ मैं, बिल्कुल किसी को होप्स नहीं है मेरे से. एंड नसीर साहब हिज यंगर ब्रदर, भाई पद्मश्री, पद्म भूषण, व्हाट नॉट, एंड सो रिस्पेक्टफुल. तो थोड़ा प्रेशर तो है इस जनरेशन में. हम अगर ठीक है अपना, एवरीवन हैज देयर ओन डिफरेंट जर्नी. सो नाउ हाउ वाज इट इन माई चाइल्डहुड? वेल, आई रिमेंबर 80s की बात है ये, जब उनका करियर एक टाइम पे वो सुपरस्टार थे उस टाइम पे. अभी भी हैं, तब तो एक अलग ही लेवल था. एंड हम छोटे बच्चे थे उस टाइम पे, अर्ली 80s. एंड आई रिमेंबर हम उनके साथ बाहर रेल म्यूजियम है ना, यहाँ पे इसके यहीं पे हम देखने गए थे. और फिर हमने वी वेंट फॉर लंच, और लंच में पहली बार हम देख रहे थे सारे पेस्ट्रीज और पता नहीं क्या क्या गुडीज. पेट भर गया खा खा के, ओवर ईटिंग भी हो गई. उस टाइम पे आई रिमेंबर ही वॉज मॉब्ड. सब लोग आ रहे हैं, सिर्फ फोटोग्राफ, तो कैनन की कैमरास थी, खिंचवो वाली, रील वाली. सब जाके भाग रहे हैं और फोटोज लेके आ रहे हैं अपनी फोटो कैमराज, और ऑटोग्राफ पूछ रहे हैं. सब इतना भीड़ क्यों जमा हो रही है यहाँ पे? चाचा है हमारे, भाई क्या बात है? That time we didn't realize because you looked at him as Chacha. Yeah. For people, he was somebody different. Correct. And then gradually over the years, I got to know that he's a very very famous. फिर हमने टीवी पे देखा उनको, मूवीज में देखा, और एक दिन तो वो फिल्म में पिट रहे थे एक सीन में. एंड माय कजन वाज क्राइंग. अरे क्यों रो क्यों रहे हो? देखो बाबा पिट रहे हैं. ओह गॉड, कम ऑन यार, इट्स ओनली अ मूवी. देन वी रियलाइज ही इज वेरी फेमस, सक्सेसफुल, एंड दैट इज हाउ. एंड मे बी कहीं ना कहीं वो इंस्पायर कर गए एक्टिंग का शौक कि जरासिम उनसे आए मेरे को, थोड़े बहुत. I can imagine. तो ट्रेनिंग उन्हीं से ही ली. एंड देखो बात ऐसी है कि अगर आपके रगों में ऐसा खून है जेनेटिकली, तो यू कैन नॉट होल्ड योरसेल्फ बैक. यू आल्सो वांट अस्पायर एंड यू आल्सो वांट टू डू दैट. बट एवरीवन, एज आई सेड, एवरीवन हैज देयर ओन डिफरेंट जर्नीज. लाइक आई डिड फिल्म्स, मगर अलग अलग गेटअप में करी मैंने, बिकॉज आई वांट टू लुक द पार्ट. जब हैदर करी तो विशाल भारद्वाज को वो ही कैरेक्टर चाहिए था, तो वही कैरेक्टर में उतारा. ये नहीं किया भाई कि मैं अली हूँ, मेरे को देखो. जब मैं बजरंगी भाईजान करा था सलमान खान के साथ, जो कबीर खान के जहन में था कैरेक्टर, मैंने वैसा ही उतारा. सो नो वन रिकॉग्नाइजेस मी, एंड इट्स अ कॉम्प्लीमेंट. आई डोंट माइंड इट एट ऑल. एज लॉन्ग एज आई वाज ऑनेस्ट टू दैट क्राफ्ट. Vivek Ranjan Agnihotri, before he made Kashmir Files, he made the Tashkent Files. And he gave me a very good role that way. I had my scene opposite Naseer Saab. He gave me the opportunity to share the screen with Naseer Saab. I had shared the stage with him. थिएटर वर्कशॉप्स का रखे हैं, बल्कि 2001 में तो बहुत कम लोग ये बात जानते हैं. रणदीप हुड्डा, शाहिद कपूर और मैं, हम एक ही वर्कशॉप में थे, एक ही क्लास में थे हम. Nice. रणदीप हुड्डा और शाहिद कपूर बॉम्बे आए. 2001 की बात बता रहा हूँ मैं आपको. तब पंकज त्रिपाठी, मशहूर कलाकार, तब NSD में पढ़ रहे थे उस टाइम पे. सो वो तो बॉम्बे आए और स्टार बने. मैं फौज में गया, उसके बाद अपनी वर्दी पे स्टार कमाया मैंने. And I perceived it this way that I can become an actor at any age, even at 50 I can become an actor. अगर ये उम्र पार हो गई और UPSC का एग्जाम फिर मैं दे नहीं पाऊंगा, CDS का एग्जाम. So right now I've got through the army, let me join the army. Because it has age constraints and acting doesn't have. Right. And I was very passionate about the forge. As I told you, I was very inspired by my father as well. तो मैंने अपना NDA का एग्जाम दिया 12वीं के बाद. I failed in my NDA entrance test. And तो मैं खास पुणे गया कॉलेज करने के लिए अपनी. खास पुणे क्यों? इसलिए क्योंकि मेरे वालिद साहब NDA के पास आउट थे, और उनके छोटे भाई नसीर साहब FTI के थे. दोनों जगह पूना में इंस्टीट्यूशंस. तो मैंने वो करीब से देख लिया. एंड आई वर्कड विद अ लॉट ऑफ FTI फिल्म्स. सईद मिर्ज़ा 1998 में FTI पूना आए हुए थे, तो हमारे कॉलेज में शूटिंग चल रही थी. तो मैं बाहर से ओवर लाइक बीइंग टोटली एनामर्ड बाय हिम एंड हिज वर्क. शूटिंग दिख रहा था मैं, साइड लाइट्स वाइट. तो मैं उनके पास गया एक दिन, वहीं पे शूटिंग के दौरान. सेकंड डे आई टोल्ड हिम आई वांट टू एक्ट इन योर फिल्म. सो ही सेड बेटा आई वुड लव इट, बट हमने तो कास्टिंग महीनों से पहले कर चुके हैं, अब तो हम शूटिंग कर रहे हैं. तो मैं कोई बात नहीं, बट आई स्टार्टेड असिस्टिंग देम. तो मतलब बाइपॉड, ट्राइपॉड उठाना, कैमरा उठाना, रिफ्लेक्टर उठाना,
और सबको सेट पे चाय पानी पिलाना, बेसिकली इन अ वे पढ़ा लिखा स्पॉट बॉय बेसिकली, दैट काइंड ऑफ स्टफ। तो वो काम मैं करने लग गया, उनके साथ रह के सीखने को बहुत मिल रहा था मेरे को। देन आई थिंक थर्ड डे ही कॉल्ड मी, ही सेड बेटा आई हैव बीन सीइंग यू, यू आर वर्किंग हार्डर देन एनी अदर प्रोफेशनल ओवर हियर, तुमको सच में एक्टिंग करनी है। मैंने कहा जी सर, आई एम वेरी श्योर ऑफ इट। ही सेड ठीक है, एक रोल मैं निकालता हूँ तुम्हारे लिए। नहीं टोल्ड मी कि रोल ऐसा है बेटा कि हीरो जो है क्रांति कनाडे, द FTI पास आउट, ही वाज द हीरो ऑफ दिस फिल्म, वो खड़े होकर स्टेयरकेस से बातें कर रहा है, तुमको पीछे से गुजरना है, बस वो रोल है तुम्हारा। उस फ्रेम में कट टू कट आएगा, करोगे चलेगा? मैं नहीं सर चलेगा नहीं, दौड़ेगा। तो दैट इज स्पिरिट एंड आई डिड दैट रोल। तो उसमें 3 सेकंड का रोल था वैसे, वो यूट्यूब पे है अभी भी है यूट्यूब पे, इफ यू पुट मोहम्मद अली शाह FTI वो आ जाएगा। तो तुमको पीछे से गुजरना है, तो मैंने पीछे से गुजरा 3 सेकंड में, तो अब अनट्रेन एंड रॉन हो, तो मैं 3 सेकंड किया, मैंने 5 सेकंड में गुजरा, मैं 2 सेकंड की मैंने फुटेज खाई थोड़ी, एंड पीछे से गुजरा एंड आई फील वेरी हैप्पी, चलो मैं स्क्रीन पे हूँ। इसके बाद फिर बहुत बाद में, तो माई स्ट्रगल एज एन एक्टर स्टार्टेड इन 1998 इफ यू सी। एजेंट विनोद करी मैंने 2011 में, फिर हैदर एंड देन बजरंगी भाईजान, फिर तिग्मांशु धुलिया के साथ मैं 2 फिल्में करी। And that my journey as an actor after the army continued, and I perceived it this way. देखो, फौज के ऊपर फिल्म तो पक्का बनेगी, हर फिल्म में पुलिस वाला होता है, वर्दी वाला तो होता ही है हर फिल्म में, या कस्टम्स ऑफिसर होएगा या फौजी होएगा। I felt that they will give me first preference to be in that role, क्योंकि मैं वो जिंदगी जी के आया हूँ। That's why I joined the Short Service Commission. मगर वो सोचना मेरा गलत था काफ़ी हद तक, क्योंकि बहुत से डायरेक्टर्स they don't want someone who knows it, who knows the intricacies, reality. They want I am the boss. वो फेक ईगो नहीं होती, I am the boss, मैं कैप्टन ऑफ द शिप हूँ, ये मेरे को बताएगा फिर। और कुछ लोग होते हैं रियलिस्टिक, लाइक विशाल भारद्वाज, तिग्मांशु धुलिया, these guys are realistic. They believe in real thing. तो विशाल casted me for that. Tigmanshu cast me in Yara. It's there on Z5. I am the parallel with the role, parallel lead with Vidyut Jambal, Shruti Hassan, Amit Saad, Vijay Verma, myself. तो इस तरीके से मेरा सफ़र चलता रहा, और मैं सबसे बेस्ट टाइम था मेरा, गोल्डन ईयर्स ऑफ माई लाइफ हुआ those 5 years in the army as a commissioned officer. You are from JNK, so मैंने अपने पहले 2 साल एज अ लेफ्टिनेंट काटे थे JNK में। Served in JNK. Yeah, I served in JNK, और मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे था बिल्कुल, where I was manning the last post of a country, and I was facing the first post of the other country of Pakistan. यहाँ पे हमारा झंडा, वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा, और 30 मीटर का फासला केवल, यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल, एंड दैट वाज अ वेरी एक्साइटिंग टेन्योर। इनफैक्ट कहाँ पे मेरे को मौका मिलता भाई, इस उम्र में, 23 साल की उम्र में आप देख रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। एंड उसके बाद फिर वहाँ पे थोड़ा बहुत आई सॉ सम एक्शन देयर आई वेंट टू नॉर्थ ईस्ट। आज की तारीख में मणिपुर इज ऑन द बॉयल, एंड आई हैव सर्व्ड विद द असम राइफल्स इन नॉर्थ ईस्ट। पूरा मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, साउथ असम। आई वॉज ADC टू अ को कमांडर देयर, और ये को कमांडर साहब कौन थे? ये मेरे वालिद साहब थे। तो उनका मैं स्टाफ ऑफिसर था, लेकिन बट वी वर वेरी वेरी प्रोफेशनल। आई वाज वेरी प्रोफेशनल विद हिम, ही वाज वेरी प्रोफेशनल विद मी, बिकॉज आई न्यू वेरी वेल आई हैवंट गॉन देयर एज हिज सन, आई हैव गॉन देयर, या मैं कैप्टन साहब था, वो जनरल साहब थे, आई वुड सैल्यूट हिम, जैन सर। माय मदर वाज मैम, और मैं अपना ADC हट था, उसमें रहा था मैं। एंड देखिए, जैसे पावर करप्ट्स, बट आप देखिए कि मैंने एज अ यंग ऑफिसर आई हैव सीन पावर एज अ यंग ऑफिसर, एंड आई हैव सीन पावर एज एन ADC एज वेल। पूरे कोर को आप ADC इज लाइक यू नो, इट्स कंसिडर्ड टू बी अ बिग अपॉइंटमेंट, एंड but since we have tasted power that early, we are groomed for it. So I have seen life from a grassroots level. I have also seen life from a 30,000 feet above mean sea level. So उससे आपकी learning, आपकी सीखना बहुत बढ़ गई. And as I told you, वही बच्चा जो बचपन में बोल नहीं पाया करता था, आज की तारीख में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा TEDx talk देके बैठा. Yeah. You aware of this? Yeah. And yeah, so it's been a very interesting journey. So tell me, I'll ask something very different. You said कि आपके father साहब, he was Jai Hind sir, and mother was ma'am. So your mother is also in army. No, army officer's wife. She was a, the thing. Yeah. So senior officer's wife would be addressed as ma'am. Yeah. And how was your connection with your mother from childhood?
And Very what, good. What would she? Why I'm asking these questions? Because I personally believe that एक इंसान की shaping में mother का बहुत ज़्यादा role होता है. Whether you're an army person, an actor, or any random person, चाहे आप कोई business में हो, कुछ भी हो, teacher हो, आपके narratives build करने के दिमाग में या आप किस नज़रिए से दुनिया को देखते हो, mother का उसमें पहला role होता है. Correct. So tell me how your mother is as a person and what is your connection with her? She's a beautiful person, and like every child, every son in particular would be fond of his mother. Similarly, I am very, very fond of her. I love her like anything. And my connection with her is very strong. It is like, you know, she's like, yeah, she means a lot. I mean, and she has, I remember जब मैं class 5th में था, she was teaching me for my entrance test. मैं 3 महीने का था, तब इन्होंने मेरे को register कर दिया दून स्कूल के लिए. तो जब मैं क्लास 5th में था तो मैं मेरी एंट्रेंस टेस्ट के लिए मेरे को पढ़ाई करा रही थी मेरे को. और रात को शी टू बर्न द मिडनाइट ऑयल. तो रात के 12 बजे कभी चाय बना के अपने लिए पिलाना, कभी दूध बना के मेरे लिए, और वो दूध मैं अक्सर वॉश बेसिन में फेंक दिया करता था. वो अलग बात रही. She'll be listening to all of yeah, she does. She अभी भी कान खींच सकती हो. And जब मेरा दून स्कूल के एंट्रेंस टेस्ट में मैं उसमें भी फेल हो गया था. आई सॉ फेलियर वेरी अर्ली इन लाइफ एक्चुअली. And I have seen a lot of setbacks, a lot of failures, a lot of humiliation, a lot of struggle, a lot of rejections, and I think those made me actually. Made you, yeah, definitely. जब आप इतने सारे failures देख लेते हैं आप, and when you have hit the rock bottom, there's only one way up, which is up and up. कहते हैं ना, what doesn't kill you makes you stronger. Yeah, absolutely. What doesn't kill you makes you stronger. And आज की तारीख में मैं motivational speaker क्यों हूँ? इसलिए हूँ क्योंकि बहुत लोग कहते हैं आप अच्छा बोलते हो. मैं अच्छा नहीं बोलता हूँ. आई डोंट थिंक आई स्पीक वेल. आई जस्ट स्पीक फ्रॉम माई हार्ट वट एवर आई फील, एंड आई एम वेरी ऑनेस्ट अबाउट वट एवर थिंग्स आई स्पीक ऑन. आई फील क्योंकि मैंने इतनी हार्डशिप्स देखी थी, मैं किस वक्त से गुजरा हूँ, किस मुश्किल वक्त से गुजरा हूँ, मैं ही जानता हूँ ये बात. ओनली यू वुड नो योर जर्नी. ओनली द वेयर नोज वेयर द शू पिंचेस, राइट? सो वो दिक्कतें मैं कैसे किसकी मदद कर सकता हूँ तब आई. भाई जब मैं अकेडमी गया ट्रेनिंग करने के लिए, मैं हर एक टेस्ट में आई वॉज फिजिकली फिट, मैं पास हो रहा था बड़े अच्छे मार्क्स से. मगर एक टेस्ट ऐसा था तमीना जहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल, सेकंड अटेम्प्ट में फेल, थर्ड अटेम्प्ट में फेल, फिर मिड टर्म ब्रेक हुई, सारे कैडेट्स घर गए. आई वॉजंट अलाउड टू गो होम. मैं तो अकेडमी में ही रुका रहा. आई सॉ एवरीवन गोइंग विद द बैग्स. अकेडमी रीओपन आफ्टर 4 days. दे केम बैक, कोई नई पिक्चर देखी, घर खाना खाया, व्हाटएवर. आई डिडंट गेट परमिशन. अब मैं अकेडमी में रुक के आई गॉट एक्स्ट्रा पनिशमेंट, एक्स्ट्रा ड्रिल्स. ये ड्रिल्स कोई टेस्ट था जिसमें फेल हो रहा था मैं. तो आफ्टर दैट, आफ्टर टेकिंग ट्रेनिंग इन द मिड टर्म ब्रेक एज वेल, 4th attempt फेल, 5th attempt फेल, 6th attempt फेल, एंड देन अ फाइनल मर्सी अटेम्प्ट, धक्का अटेम्प्ट ना, ग्रेस अटेम्प्ट वाज ऑर्गेनाइज्ड स्पेशली फॉर मी कि इसको पास कराते हैं इस टेस्ट में. उसमें भी फेल. उसके बाद हमारे मेजर जनरल अवस्थी साहब थे फ्रॉम राजपूत रेजिमेंट, वेरी फाइन ऑफिसर, वेरी फाइन जनरल ऑफिसर. आई वाज मार्क्ड अप टू हिम. He said, "Beta, I have your dossier." Dossier French में कहते हैं report card को. I have your dossier, not of me, and I see you're doing very well. Physicals में I was super excellent. Super excellent था मैं. इसमें मैं बार fail. You are consistently doing very, very well, beta. But what's the problem? In DST drill square test, you are failing consistently. तो मैं बोला, sir, when I came for my training, my father said, "Beta, do well in academy, make us proud. But always remember, most important thing, to keep your performance always consistent." तो वहाँ से यार बड़ी जोकर यार, हला बच्चा प्यार, इसको पास करो. तो रात भर पुशअप्स मारा था मैं, तो मैं पास तो हो गया. You were consistent in failure. Yeah. तो वहाँ से खूब कहता है. You applied it somewhere else. तो पासिंग आउट परेड होती है ग्रेजुएशन सेरेमनी ना, उसमें आई वाज अलाउड टू मार्च विद माय कंपनी. हाँ, it was like a mental torture, you know. I had to stand outside my company, put my hand on my waist, and सबको पुशअप करवा रहे थे. हाँ, मैं बॉन्ड हूँ, तुम सब ढक्कन हो. ढक्कन तो मैं बहुत पोलाइट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ बाय द वे. मैं बॉन्ड हूँ, तुम सब ढक्कन हो, तुम राड़ा खा रहे हो, मैं यहाँ बाहर खड़ा हुआ हूँ. एंड देन हमारा फौजी खानदान है बेसिकली, यू नो. और 1987 में मेरी सिस्टर का सिलेक्शन हुआ था स्कूल से 26 जनवरी की परेड में जाने के लिए. और मेरे एक अंकल हैं, क्योंकि हम फौजी खानदान भी है, तो वो आर्मर्ड कोर में थे, कर्नल मीर अहमद शाह, तब मेजर मीर अहमद शाह. तो ही हैड टू लीड द आर्मर्ड कोर कंटेंजेंट, बट माय सिस्टर कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द परेड बिकॉज 23rd January 1987 my nana passed away, my maternal grandfather.
तो हम अपने होम टाउन गए थे फॉर हिज बेरियल एंड सच थिंग्स। हमने टीवी पे देखा था मेरे अंकल को बाद में कि भाई टीवी पे कमांड कर रहे हैं परेड को, सो मे बी दैट मोटिवेशन वाज आल्सो देयर। और मेरे को मेरा सपना था कि मैं राजपथ से एक दिन गुजरूंगा भैया, और राष्ट्रपति की आंखों के आंखें डाल के सलामी दूंगा उनको मैं। एंड आई ग्रू अप विद दैट ड्रीम समवेयर। और वो सपना कैसे कहाँ दिमाग में आया मैं नहीं जानता, मगर आ गया बस। कई बार होता ना, यू डोंट नो, यू हैव नो एक्सप्लेनेशन, नो रीजन। एंड सो 26 जनवरी 2008 को मैंने असम राइफल्स का मार्चिंग दस्ता कमांड किया, वो भी यूट्यूब पे है, 28 सेकेंड वीडियो विद 2 फ्रैक्चर्ड लेग्स। मेरे दोनों पाँव में फ्रैक्चर थे, मगर मैंने पेन किलर्स पे वो की परेड। सो आई फील द माइंड कैन अचीव व्हाट कैन कंसीव। Anything. आपको होता है दिखते you have also acted as cop in movies, and talking about movies which portray the battlefield, चाहे border पे या कहीं और, do you think इस तरीके की जो movies बनती है they do justice to the reality of battlefield जो हो रहा होता है और फिर मूवीज़ में जो पोर्ट्रे करते हैं? एंड इफ़ इन केस यू आर सेइंग नो एंड सच थिंग्स डोंट एग्जिस्ट, दे आर नॉट शोइंग द रियलिटी, तो हम कैसे जो है इंडिया की आम जनता, द यूथ हु इज़ वेरी एस्पिरेशनल टुवर्ड्स आर्मी एंड अदर थिंग्स, हाउ डू वी टेल देम अबाउट द रियलिटी? बिकॉज वो मूवीज़ देख के एक्स्ट्रा उनका स्टिमुलेशन हो जाता है, थिंकिंग दैट वी आर गोइंग टू बी टॉम क्रूज इन आवर माइंड, वी आर गोइंग ऑन बॉर्डर and performing like Tom Cruise, you know, lot of things like that, even for Indian movies. Do you think it's not portrayed well? और अगर नहीं हो रहा है तो बच्चों को कैसे organic picture उसकी दी जाए? A very good question. I'm glad you asked me this question, you know, because as Fauji, हम लोग we cringe when we see a war movie. Battlefield. Yeah. और ये फौज के पिक्चर देखते हैं, हम हंसते हैं, हम कहते हैं यार क्या बनाया है यार, कुछ रिसर्च कर लेते हैं यार, कुछ पैसे डाल के रिसर्च कर लेते हैं आप, बिना कि ये तामझाम करने के। तो रियलिटी इज वेरी डिफरेंट देन इसमें जो होता है या व्हाट द शो। आई फील अगर आप फिल्म बना रहे हो फौज के ऊपर, इट शुड बी लाइक अ डॉक्यूमेंट्री, के इट शुड बी दैट रियल, दैट एक्यूरेट। आपकी रिसर्च इतनी होनी चाहिए, वो मेहनत नहीं करनी ना कई लोगों को, उनको। Do we should we also say that somehow, क्योंकि acting का एक नज़रिया ही ऐसा है that somehow we have to show it in a very cinematic position, somehow we have to show कि लोग क्या पसंद करेंगे। हो सकता है our जनता is not ready yet to see such harsh realities, so that they end up not liking the movie. Well, I don't even think that is the reason. I feel our filmmakers need to, they are not mature enough to actually understand the intricacies about the army. I'll give you a small example. फौज में हम लोग एक एक बारीकी से हम हर चीज़ होते हैं। बहुत ही एग्जाम्पल के तौर पे कहता हूँ मैं, अगर आपकी शर्ट का बटन है ना, ये बटन एक होता है क्रॉस स्टिच और एक होता है 11 स्टिच। 11 स्टिच में होना चाहिए। I'm giving example. And why is that? एक रूल है, it's a rule. No. How does cross stitch harm the procedure? It doesn't harm the procedure, मगर एक dressing, it's a uniformity. सबके बटन। You had mentioned on your Twitter, and which surprised me a lot, that a person who didn't bring his stove and kerosene from home, he was told that he should put chai patti in his mouth and milk and chew it, and after that put water in his mouth, start running, so that it brews in the stomach. That is the punishment for not bringing your own stove. ये आज की ट्वीट है बिल्कुल, और आपने सही फरमाया। Actually, I had interviewed a naval admiral, a former chief of the naval staff. So I had put it on Twitter, and somebody else tweeted that, put that. You only credit. I retweeted that. Oh. Okay, he is commandant of a coast guard right now, and वो छोड़ के वो भी एक्टर बन गया। But has that happened? Yeah, it's so many times. It happened so many times. अगर आप सोते हुए पकड़े गए, जो अक्सर हम सोया करते थे क्लासेस में, ऑब्वियसली थक जाते थे, तो मिर्ची खा लो, हरी नींद भाग जाएगी, लेग्स अप, हैंड्स डाउन, फ्रंट रोल। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स। आई मीन किस्से तो ऐसे बहुत है, हमारी ट्रेनिंग के टाइम पे किस्से बहुत है हमारे। क्या क्या बताइए। एक तो था बंदा जो घोड़ा चलाते हुए हॉर्स बैक के ऊपर सोया करता था। हम लोग भाग रहे हैं और सो रहे हैं क्योंकि नींद खींचने का वही टाइम हमको मिल रहा है। फर्स्ट डे वी वर टोल्ड वेलकम टू द ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। नो, बट आर यू नॉट गिवन प्रॉपर स्लीपिंग आवर्स? एंड व्हाई इज दैट? ट्रेनिंग, अगर कभी आपको ट्रेनिंग में आपको वी मेक मैन आउट ऑफ बॉयज, सिंपल सी बात है, यू नो, इन द आर्मी। सो अगर जंग बिछड़ जाए और आपको जंग में जाना पड़े, ये आप नहीं कह सकते भाई 9 to 5 पंच इन पंच आउट। अब मेरा 5 बज गए, अब तो दुश्मन फायर नहीं करेगा, मैं भी दुश्मन फायर नहीं करूंगा, मैं सो रहा हूँ।
You can't do that. You have to be on your toes. You have to be alert all the time. 24 घंटे. No, but see, I am not from an army background. I know there are certain sensitivities I don't understand. But what I understand as a common person, what you call a civilian, is that a healthy sleep schedule is must for a healthy human for his cognitive health, right? We can do one thing instead of this, that we keep two teams, one for night duty and one for day, so that both the groups sleep alternatively, so that the cognitive health is in place. वो होता है when you get commissioned as an officer or when जब आप जवान बन जाते हो. ट्रेनिंग में नहीं होता. ट्रेनिंग में आपको तो वही बताना ना कि you should go through the extreme. They're grilling you. वो आपको स्ट्रेस लेना आना चाहिए. हाँ, ट्रेनिंग के टाइम पे you should be able to do that. We will not make you do it. They're preparing you for the worst a human can tackle. Yes. तो आपने जो सजेशन दिया वो बिल्कुल ऐसे ही होता है और बिल्कुल सही कहा कि नाइट ड्यूटी का कोई और दिन में डे में अलग होना चाहिए. हाँ, बट while training they will not the same. ट्रेनिंग का मकसद ये है भैया, to toughen you up, simple. And तो रगड़ा हम खाते हैं, मजा भी आता है रगड़े में. And I came from a boarding school, so frankly speaking, and I was physically fit. तो मुझे ऐसी कोई खास दिक्कत आई नहीं. अपार्ट फ्रॉम दैट टेस्ट आई वाज फेलिंग रिपीटेडली, because you were consistent. Consistent in that. जी. Okay, so amazing conversation. Amazing. Thank you so much for being here with us, and I really enjoyed. It was very thorough, and I came to know about many things which were brainstorming for us. Thank you to the viewers for watching our show. Thank you so much.